Yeah. So, so I will again repeat this topic. Okay, center of gravity. Okay, what is the definition? What is meant by center of gravity? कल आपको मैंने explain किया था. I have given few examples, especially for curve, for area, and for solid surface. Okay, so इन तीनों केसेस में आपको मैंने एक एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया था जहाँ पे एक्चुअली आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजी पॉइंट कंसिडर करके या जो भी वो एक्सपेरिमेंट था या जो भी वो गेम था आपको प्ले करते थे. सो कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन योर लैंग्वेज. व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी? यस यस, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? It is a point. Balance point. Balancing point. Okay, or it is a point where the total weight is concentrated. Okay, so it is a point where total weight is concentrated. Okay, or simply it is a balancing point. Okay, that is easy to remember. And after this, depending on the on the given surface, whether we have given 1D surface or curve in 1 dimension, area in 2 dimension, or solid in 3 dimension, depending on these 3 region. Okay, region in 1 dimension, region in 2 dimension, region in 3 dimension. Okay, we have those formulas. Okay, so let me start one by one. Let us first discuss the center of gravity for curve only. So that is for 1 dimension. Okay, so CG of curve. Okay, this you can treat as for 1 dimension. Okay, for example, if you take any curve, okay, and you have to calculate this balancing point. Okay, so this is your balancing point. Okay, let us call it as say x bar comma y bar. And what is formula for this? What is formula for this? Can anyone tell me that? What is formula for this? हमने कर लिया था ये part. Yes, what is formula for this? Okay, so that formula is, so x coordinate of that balancing point is So rho equal dx dy x rho upon ds, okay, upon integral of rho dl. This is the small area of this curve, and y coordinate is equal to y rho ds upon integration of rho ds. Okay, करेक्ट है ये? यस और नॉट? yes sir. Yes, sir. सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. ओके, आपको ज़्यादा फोकस करना है 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन थिंग्स के ऊपर. ओके, क्योंकि 1 डायमेंशन का है, इस पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले. कर्व का बैलेंसिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे. यू हैव टू फोकस मोर on the area when we have given an area, how you actually calculate that balancing point. When we have given the solid surface in 3 dimension, how you actually calculate that balancing point. So उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है. ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस पर आ सकते हैं. एंड जनरली as far as MCQs are concerned, this things are given. What is ds, है ना? So that is that you can calculate from a rectification. Okay, so it is not there in your syllabus actually, but in that case we have given the value of ds. Okay, so from parametric equation you can actually calculate the length of that curve. ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट होती है उसका एक फॉर्मूला है एक्चुअली. मतलब आपके अभी सिलेबस में नहीं, दैट इज देयर इन कर्व ट्रेसिंग टॉपिक. बट अगर MCQ इस टॉपिक पे आ जाता है, सो इन दैट केस यू हैव गिवन दिस ds, वैल्यू ऑफ ds इज गिवन, है ना? बस आपको प्रॉपर लिमिट्स लेके उसको सॉल्व करना है. इतना ट्रिवियल है. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज the next case is what? The center of gravity for area, or center of gravity of area. So this is the object in say 2D. So if I consider this object, let us consider any square. Okay, so this is your this is your area, and you can imagine this is your center of gravity point. Let us call it as P, and whose coordinates are say x bar comma y bar. And in this case the formula for x bar is, now can anyone tell me this? What is the formula for x bar? Yes, I will take some examples also, not on 1D, but I will take examples on 2D and 3D. Yes, double integration. Double integral.
yes, X x रो ds dx dy. सिंपल है ना, ds द स्मॉल एरिया, ओके, द स्मॉल, दिस इज फॉर कर्व, सो कर्व का स्मॉल एरिया यही होगा, okay. But when we are in 2D, okay, when we are in 2D, our small area is replaced by dx dy. This is the change, this is the change, okay. And so double integral, and dx dy means we have to consider double integral. So double integral x rho dx dy whole divided by double integral rho dx dy. एक ही फॉर्मूला है, उसको ही डबल में कन्वर्ट करो, उसको ही ट्रिपल में कन्वर्ट करो, इतने आपको याद रखना है. एंड योर y बार इज इक्वल टू द डबल इंटीग्रल y rho dx dy whole divided by integral rho dx dy. Okay, so this is all about the second case, the CG of area. Okay, let me write the third formula and the last formula. Okay, that is the center of gravity for solid, है ना, center of gravity of solid. This is the surface in 3D, correct? So now can anyone tell me this formula? X bar is equal to what? So in 3D let me take one simple example, है ना. मैं क्या करता हूँ, जो आपको ज़्यादातर पता ही है वही लेता हूँ. I think yesterday we have draw that paraboloid ना, या कोई भी एक सरफेस आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो. सो लेट मी एज्यूम दिस इज माय सरफेस इन 3D एंड इसका एक बैलेंसिंग पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है. ओके, सो आई एज्यूम दिस इज माय बैलेंसिंग पॉइंट. अभी ये तो सेंटर पे आ रहा है, सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू, आई विल रिमूव दिस, है ना. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को शो करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, नाउ if this is the 3D surface, okay, and if this is my balancing point, so then that balancing point P has coordinates, yes, x bar comma y bar comma z bar. Okay, now tell me or you can take a simple example of football. अभी ठीक है, ये अभी कंसिडर कर सकते हो आप. बोलो इस केस में व्हाट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट? हाँ, triple integration triple integral x rho, the small area in this part is dx dy dz, okay, whole divided by triple integral dx dy dz. Okay, next y bar is equal to triple integral y rho dx dy dz and whole divided by ट्रिपल इंटीग्रल रो, यहाँ पे रो रह गया, रो डी एक्स डी वाई डी जेड, रो डी एक्स डी वाई डी जेड एंड द जेड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल जेड रो डी एक्स डी वाई डी जेड एंड होल डिवाइडेड बाय ट्रिपल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई डी जेड. ठीक है, ये कल मैंने आपको बस इतना ही इंट्रोड्यूस किया था, कुछ ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था. ओके, यहाँ तक क्लियर है अभी. नाउ वेदर दिस फॉर्मूलाज आर क्लियर, हाउ वी एक्चुअली गेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फॉर अ कर्व, फॉर एरिया एंड फॉर सॉलिड सरफेस. इज दिस क्लियर नाउ? yes Okay, now let me give some remarks on this part which are very helpful as far as MCQs are concerned. Okay, so the first remark, if rho is not given, then okay, take the value of rho is equal to 1. ठीक है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने रो नहीं दिया, वी हैव टू एज्यूम दैट रो टू बी अ कांस्टेंट एंड दैट द कांस्टेंट वैल्यू वी हैव टू कंसीडर एज 1. ठीक है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने रो दिया है तो ही आपको वो रो कंसीडर करना है. Okay, other way I have to directly take the value of rho to be 1. Okay, this is the first remark. Second remark, whatever surface is there, whether that surface is in 2D or in 3D, let me write specifically for 2D case. Okay,
Okay, as we have to focus, okay, as we have to consider this as the application for double integral and triple integral. आपको पता है ये टॉपिक हम आप क्यों लर्न कर रहे हो, because this topics actually gives you the application of double integral and triple integral. So we have to focus more on this area part and solid part. Okay, so I will write this remark especially for these two cases. So for area, let me consider three cases. If given area is symmetric about x-axis, then what is your center of gravity point? Then what is CG? What is CG? In that case, if your area is symmetric about x-axis, then what is your CG point? On x-axis. Then center of gravity point कहाँ पे lie करेगा? Then center of gravity point lie on x-axis. अभी clear होगा. If that point is lie on x-axis, okay. So what is the coordinates of that? 0, y. Very good. Okay. So in that case, you can write it as, since it is lie on x-axis, so y coordinate is 0. Correct, na? Correct or not? Yes. Okay. Correct, sir. Now same thing, same remark you can write for the next case. Okay, let me take a next page. And आप ये same remark अभी लिख सकते हो for the next symmetry. Okay, so so second case, if given area is symmetric about y-axis, correct, then center of gravity point lie on y-axis, and what are the coordinates? What are the coordinates of that? Since it lie on y-axis, 0, y बार. ये आपको MCQ में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है. और मैं आपको और भी क्वेश्चन देता हूँ तो जिसमें आप कैसे सोचते हो वो ज़्यादा मैटर करेगा. मतलब अगर आपने रॉन्ग अप्रोच से किया, सो दैट इंक्रीजेस योर कैलकुलेशन. सो सिमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है. जब भी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हो, पहले ये चेक करो कि व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ दैट गिवन एरिया और गिवन रीजन. ओके, पहले वो चेक करो कंपलसरी. उसके बाद ही आपको आगे का डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ दैट गिवन रीजन. Next case is what? If given area is symmetric about the line x equal to y, then center of gravity lie on x equal to y line. पता है ना सबको? x equal to y line. Yes. हाँ, this line I'm talking about. ठीक है. This is where x equal to y line. So about this line, if you get a symmetry, then your center of gravity point lie on same line, ना? Correct, eh? Yes. And in this case, what is the center of gravity point? Point क्या होगा फिर उस केस में? हाँ? Point क्या होगा? Point क्या होगा? अरे? जेवढा x असणार तेवढा y. Both x and y coordinates are equal, है ना? So it is either x bar comma x bar, or it is either y bar comma y bar. करेक्ट है. तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो. सेकंड कोऑर्डिनेट इज सिमिलर टू दिस कोऑर्डिनेट. ओके, क्लियर? ओके, एंड नाउ हाँ, सो दिस यू कैन से अ थ्योरी पार्ट, है ना. रो इज नॉट गिवन देन, एंड दिस आर द सिमेट्री दैट ये सिमेट्री एक्चुअली मैंने एरिया के लिए कंसिडर की थी. ओके, लेट मी राइट इट फॉर 3D सरफेस आल्सो. लिख लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. And now tell me the next case. So third case is for solid, okay, or for solid in 3D. Okay, so if given solid or given surface, जो भी आप इसको बोल सकते हो, is symmetric about x axis, then center of gravity point lie on x axis. Now can you tell me what are the coordinates in that case? Tell me quickly. 3D में
अगर कोई एक्स 0 सरफेस आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दे रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? एक्स 0 0 x bar 0 comma 0, remaining values are 0. Same thing you can write it for y axis, same thing you can write it for z axis. हो गया, ठीक है। तो मैं तीनों आपको बस दे देता हूँ, ये फाइल में शेयर कर देता हूँ फिर। सो द सेम थिंग you can write it for y axis and same thing you can write it for z axis, ठीक है। so let me just do that correction. So in next case, if you are given solid is symmetric about say y axis, correct, then center of gravity point lie on y axis, and what is the point? So only y coordinate you have to consider and remaining values are 0, correct है। and जो third result था मेरा, if it is symmetric about z axis, now because there are 3 axes, then it lie on z axis, and what are the coordinates? 0, 0, z bar, 0, 0, z bar. Okay, MCQ point of view से ये important है, ठीक है। Any doubt up to this part? So this symmetry is very important as far as MCQs are concerned, क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा एंड क्विकली यू कैन आइडेंटिफाई दैट आंसर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ओके, आई नीड टू ड्रॉप दैट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है बट अभी देखते हैं टाइम कितना मिलता है। हाँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि रैंडम दे रहा हूँ क्वेश्चन, इफ CG ऑफ लेट मी टेक दिस कर्व, आपको पता ही नहीं ये कर्व क्या है, ऐसे डिफिकल्ट दे रहा हूँ। इनटू से x स्क्वायर y स्क्वायर, टेक अ डिफिकल्ट का, ओके। इफ द सेंटर ऑफ सॉरी द क्वेश्चन पूछना है ना मुझे, द सेंटर ऑफ एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कर्व, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ विच इज symmetric about x axis is, okay, and now there are 4 options. First option is let me take uh, 2a by 4, 2a by 4. B option is let me take say sorry let me take 2 by 3 comma minus 4 by 5. C option, let me take 2 by 3 comma 0 and whatever D option is there, नन लिख लेता हूँ, नन ऑप्शन नहीं आता आपको कभी, ठीक है, बट अभी के लिए मैं डाल देता हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। सो कैन यू टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग? सी। आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है सिमेट्री का? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पे, ओके। डिफिकल्ट कर्व मैं आपको दूंगा, ओके। उसके पास आपको अगर आपको उसकी सिमेट्री पता है तो वहां से डायरेक्टली कुछ ऑप्शंस आपके डिलीट हो सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में एज वी नो दैट दिस गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, बिकॉज सारे y के पावर इवन है, रिवर्स होता है, y के सारे पावर इवन आते हैं तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है, x के सारे पावर्स इवन आते हैं तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। मे बी यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस रिजल्ट, बट ठीक है, अगर मैं दे देता हूँ आपको कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मींस y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, बट यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो ये ऑप्शन आपका कभी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट आपका 0 नहीं है तो ये कभी नहीं हो सकता, ओके। सो दिस मस्ट बी योर आंसर इफ देयर इज फोर्थ ऑप्शन, अगर मैं कुछ भी रैंडम दे देता हूं तो, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं 1 मार्क के लिए, ओके। डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा बट आप अगर उसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तो वो वैसे भी नहीं आने वाला कभी आपसे, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट चेक व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ दैट गिवन सरफेस और गिवन रीजन, ओके। क्लियर है ये? सर आणि चौथा पण ऑप्शन जर का म्हणजे ए आणि 0 असेल तर? नाही तसं देणारच नाही ना, तेच सांगतो ना, तसं देणारच नाही ना आम्ही, ओके सर।
सो मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आपको सॉल्व करना होगा ना। अगर मैं यहाँ पे दोनों a,0 ऑप्शन दे देता तो आपको सॉल्व करना होगा, तो वो मुझे नहीं सेट करना है ना क्वेश्चन। तो मैं ऑब्वियसली क्या दूंगा, 0,2/3 दूंगा अगर मुझे देना ही है तो, या मैं रैंडम दूंगा, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ऐसा ऑप्शन दूंगा अगर मुझे देना ही है यहाँ पे। सो व्हाट आई कैन डू हियर, लेट मी टेक नेक्स्ट पेज। -2/3, 2/3, ओके ऐसे कुछ मैं दे दूंगा, x इक्वल टू वाई का पॉइंट, ओके x इक्वल टू -y का पॉइंट, ओके तो उससे भी आपको क्लिक हो जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो इसलिए सिमेट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। x इक्वल टू वाई के केसेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अबाउट x एक्सिस के, अबाउट y एक्सिस के, अबाउट z एक्सिस के भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं, ओके। ये एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, उतना ही मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। नाउ लेट मी टेक सम एग्जाम्पल्स ऑन दिस पार्ट, तो आपको इसका पूरा अप्रोच समझ में आ जाएगा। सो एग्जाम्पल्स, अभी एक्चुअल एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, ओके लेट मी टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। फाइंड CG of area bounded by cardioid r equal to a 1 plus cos थीटा। बोलो पहले मुझे ये बोलो, ये 2D का या 3D का है या 1D का है, कौन से डायमेंशन का क्वेश्चन है? हाँ 2D सर, 2D का है, एरिया कैलकुलेट करना है, तो पहले तो वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, ओके। सो 2D का क्वेश्चन है, एरिया कैलकुलेट करना है। सो लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट, ओके। सो कार्डियोइड आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज माय कार्डियोइड, r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, करेक्ट है? सो दिस कर्व is called r equal to a 1 plus cos theta and the area is this, okay। now next बोलो क्या करोगे आप आगे, बोलो। इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द सिमेट्री, तो ही कैलकुलेशन समझ में आएगा। सो सिंस गिवन एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, एक्सिस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या होगा, y0 असेल, y0 असेल, म्हणजे x बार कॉमा we have to calculate only x bar coordinate, okay, and in 2D. So let me write the formula for x bar in 2D. So double integral x rho dx dy whole divided by double integral rho dx dy, but here rho is not given, correct, rho is not given, then in that case you have to consider value of rho to be 1, so that become double integral x dx dy, okay, upon double integral dx dy over a region r, but region r कौन सा गिवन है, जो डायग्राम में वो। अभी आप बोलो कैसे करोगे, टेल मी द नेक्स्ट अप्रोच। पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। ये चेंज मतलब इसलिए मैंने ज्यादा फॉर्मूले ऊपर ऐड नहीं किए थे, ओके, क्योंकि आपको अभी डबल मैंने पढ़ा है, आपको ट्रिपल मैंने पढ़ा है, तो जो कल की पीपीटी थी उससे अगर आप जाते हो तो इट जस्ट इंक्रीजेस द फॉर्मूलेज, ओके। सो तो आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास आर एन थीटा का कोई इक्वेशन गिवन है तो आपको उसको पोलर से करना है। अगर आपको पता है कि आपका जो गिवन रीजन है वो सर्कल का पार्ट है या इलिप्स का पार्ट है तो भी आपको पोलर से करना है। सेम थिंग वी हैव जनरलाइज फॉर ट्रिपल, ओके। इफ योर गिवन रीजन इज पार्ट ऑफ एलिप्सॉइड, पार्ट ऑफ स्फीयर, सॉल्व बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे यहाँ पे ये जो रीजन है ये ऑलरेडी पोलर में गिवन है, r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, देयरफॉर आफ्टर दिस वी हैव टू यूज द पोलर कन्वर्जन, ओके। So by polar coordinates, बोलो चेंज क्या होगा, x बार इक्वल टू डबल इंटीग्रल x रिप्लेस बाय r cos theta, वेरी गुड, r cos theta, एंड dx dy इज रिप्लेस बाय r dr d थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय दिस इज रिप्लेस बाय r dr d थीटा,
and I think it is equal to, now you can write the limits directly for that given region, just to cover this whole region. Okay, क्या करें, इसको सिमेट्री यूज करनी है, डायरेक्टली करना है, you can go by just take a radial strip in that region. ठीक है, so this is my radial strip. हाँ बोलो, now let me write the formula for numerator. ठीक है, अभी आपको पता है यहाँ पे r वैरी फ्रॉम 0 to a1 plus cos थीटा एंड थीटा वैरी फ्रॉम 0 to pi. 0 to pi. ठीक है 0 to pi, तो मुझे 2 टाइम्स करना होगा ना, करेक्ट? Yes. Yes, sir. So is this correct or not? Tell me. Theta vary from 0 to pi, r vary from 0 to a into 1 plus cos theta into this r square cos theta dr d theta, करेक्ट है ये? एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही होगा, 2 टाइम्स थीटा वैरी फ्रॉम 0 to pi, r वैरी फ्रॉम 0 to a 1 plus cos theta. यहाँ पे क्या आएगा, r ही है ना, RD. d theta. So from this you can cancel this 2 and let's just solve this further integral. मैं एक दो केसेस में करके देता हूँ and after that I will skip this part. तो फर्स्ट केस में क्या होगा, या वैसे भी ये लेंदी हो जाएगा, बड़े आपको आने वाला एग्जाम में. सो थीटा वैरी फ्रॉम 0 to pi, इसका डायरेक्ट बोलो, इंटीग्रेशन क्या आएगा, r³/3 ना, r³/3. r³/3 मतलब मुझे क्या लिखना है, a³ 1 plus cos थीटा क्यूब, है ना, Yes. 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है, cos थीटा, Cos theta, d theta. हाँ आर आर चला गया, डी थीटा. ठीक है, करेक्ट है ये, Yes, sir. एंड होल डिवाइडेड बाय, कैन यू नोट जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑन कैलकुलेटर और टेल मी मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है. a³ को मैं बाहर ले सकता हूँ, जस्ट पुट ऑन कैलकुलेटर, टेल मी व्हाट दिस गिव्स यू. एंड नीचे क्या होगा वो कर लेते हैं. सो थीटा वैरी फ्रॉम, एनीवन प्लीज डू इट क्विकली, क्योंकि जो कैलसी से हो रहा है वो हमें मैन्युअली करना ही नहीं है. 0 to pi, ये होगा r²/2, r²/2 मीन्स a² 1 plus cos थीटा स्क्वायर बाय 2 d थीटा. आई गेस चेक करो अगर कहीं पे मेरी मिस्टेक हो जाती है तो. ओके, एंड टेल मी, नाउ टेल मी, एनीवन प्लीज पुट दिस ऑन कैलकुलेटर और मुझे बोलो उसका आंसर क्या है. आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम टू सॉल्व दिस पार्ट, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस लेने हैं. डू इट क्विकली, एनीवन बोलो बस आंसर आ रहा है कि नहीं, उतना अगर मुझे मिल जाता तो बाकी मैं देख लूंगा फिर. वर्च्याचं 5π/6 a³ कैलसी में आंसर दे रहा है अदर स्टूडेंट्स, सो ज़्यादा इसमें एग्जाम में भी टाइम वेस्ट मत करो. a³ बाहर लेके इसका आंसर आ रहा है 5π/6. 5π/6. ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय, डू इट दिस, a² होगा नीचे. अरे चलो वेस्ट हो गया. अदर स्टूडेंट्स आप भी पुट करो. ऊपर का मैं अगर बोलता हूँ तो नीचे का आपको इमीडिएटली करना चाहिए था. 3/4 pi into a². 3/4 pi, करेक्ट है. Yes, sir. Okay, so you can cancel this a², you can cancel this pi. So what is your final answer? This 3, this is 2, है ना, और क्या क्या हो सकता है, 10/9. so 10/9 9a. Okay, this is your x coordinate. So your final center of gravity point, please verify this. If I मतलब कहीं पे मिस्टेक हो जाता है तो मुझे बोल दो. So 10/9a, 0 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आने वाले हैं. ओके, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. और कौन सा लेना है मुझे, या लेट मी टेक दिस. फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वन लूप ऑफ
लेमनिस्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, बोलो मुझे इसके डायग्राम क्या है, या आपको मैंने बोला था या आपको याद ही रखने होंगे ये सारे कर। यस, व्हाट इज डायग्राम ऑफ दिस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? क्या है इसके डायग्राम? या आपको प्रिपेयर करना है, आज के ओरल में भी ये पूछने वाला हूँ मैं, व्हाट इज द डायग्राम ऑफ दिस? हाँ डम्बल। हाँ, डम्बेल शेप कर, सो इट्स अ डम्बेल शेप कर। सो थीटा इक्वल टू 0 पे ये डम्बेल शेप आपको मिलता है, इसी ये कर्व है, ठीक है। सो दिस इज थीटा इक्वल टू 0, इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, this is theta equal to pi by 4, this is theta equal to pi by 2, और मुझे एक ही लूप का चाहिए था, so this is my area। बोलो, so this area is symmetric about हाँ X x axis। theta equal to 0 or X। हाँ, so since given area is symmetric, save this file, about x-axis, so CG point is equal to y coordinate is 0, so x bar comma 0. What is the formula for x bar? X bar equal to double integral, if rho is not given, so directly write, let me write this, x dx dy divided by double integral dx dy। कभी कभी ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में भी गिवन हो सकती है, जस्ट टू रिड्यूस अवर कैलकुलेशन, डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई की वैल्यू। ओके, बोलो ये कन्वर्जन डायरेक्टली। थीटा वैरी फ्रॉम 0 to pi by 4 2 times। यस, जस्ट 1 मिनट। हाँ, थीटा वैरी फ्रॉम 0 टू, वेरी गुड, Pi by- पाई बाय 4, आर वैरी फ्रॉम 0 टू A square cos theta। अंडर रूट में जाएगा ना ये, हाँ, yes, sir। हाँ, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, फिर क्या रहेगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, डी एक्स डिवाइज रिप्लेस बाय आर डी आर डी थीटा, एंड होल डिवाइडेड बाय, अगेन इट इज 2 टाइम्स, लिमिट विल बी सेम, 0 टू पाई बाय 4, आर वैरी फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा। ये आर स्क्वायर नहीं होगा, आर 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 आर, ये डी एक्स डिवाइड ना नीचे, सो डी एक्स डिवाइज रिप्लेस बाय आर डी थीटा, ठीक है। सो टू यू कैन कैंसल, एंड नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट, फिर आप कर लो, 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा वैरी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2, R cube। हाँ, आर क्यूब। सो आर क्यूब मीन्स, ये करेक्ट है क्या मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का क्यूब, रूट है ना ये भी रूट में, उसका क्यूब 3 बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 3 है ना, Yes, इनटू sir। क्या लिखना है, थीटा। करेक्ट लिखा है क्या मैंने, ये चेक करो एक बार। Yes, sir। ओके, कम टू डिनोमिनेटर, 2 कैंसिल हो रहा है, सो थीटा वैरी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। ये मैं आपको इसलिए जंप करके दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आपको भी ऐसा ही लिखना है, डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट टू राइटिंग दिस इन बिटवीन स्टेप्स, ठीक है। आर स्क्वायर बाय 2 ट्रिपल है ना, आपको तो ये समझ में आना चाहिए, आर स्क्वायर बाय 2, तो ये ए स्क्वायर ही रहेगा कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। सो अभी आप ये करो इसके आगे, हाँ, एंड मुझे पास फाइनल आंसर बोल दो। तो मैं उसमें कुछ नहीं लिखने वाला, यू हैव टू डू इट ऑन कैलकुलेटर एंड लेटर ऑन यू टेल मी दिस फाइनल आंसर, या आप कोई तो स्क्रीनशॉट लेके के रखो और बाद में मुझे बोलो लेक्चर के एंड में कि इसका आंसर क्या है। राइट नाउ आई विल कीप दिस ऑन होल्ड, ओके। चलो, तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लेने। क्लियर हो रहा है ना सबको यार, डिफिकल्ट जा रहा है टॉपिक, क्लियर है? और ये क्वेश्चन आपको मैन्युअली मतलब कैल्सी में ही करना है, तो ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि डिफिकल्ट होगा। बस रीजन, ये कर्व्स आपको याद रखने, जो भी उस टाइम पे आपको मैंने दिया था कि कौन कौन से कर्व्स आपको याद रखने हैं, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक और मैं आपको इलिप्स का दे देता हूँ। चलो, फाइंड
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया इन पॉजिटिव octant of ellipse. बोलो पहले मुझे ये बोलो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इट हैज़ टू गिवन इन क्वेश्चन इटसेल्फ. वो क्वेश्चन में रहता है, रहेगा मतलब इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. आपको बस पॉजिटिव ऑक्टेंट में ही चाहिए, तो रैंडमली आप डायग्राम ड्रॉ करके जा सकते हो. सो आई ड्रॉ इट. सो इलिप्स मतलब ऐसा कुछ तो वो होगा, ठीक है. एंड पॉजिटिव ऑक्टेंट मतलब इतना ही पार्ट आपको देखना है, ठीक है. एंड इन दैट रीजन यू हैव टू कंसीडर बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या क्या करोगे आप बोलो. हाँ यस यही एरिया चाहिए मुझे. यहाँ पे सिमेट्री यूज होगी क्या? नो ये इलिप्स सिमेट्रिक है, बट आपको इलिप्स का नहीं कैलकुलेट करना है. आपको किसका कैलकुलेट करना है? ये रीजन का, फर्स्ट ऑक्टेंट का जो रीजन है उसका. तो इस केस में मुझे बस फॉर्मूले चाहिए. एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा? सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार. एंड नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर एक्स बार. हाँ डबल इंटीग्रल एक्स dx dy whole divided by double integral dx dy. This is your x bar and your y bar is double integral y dx dy whole divided by double integral dx dy. Just tell me the conversion, कैसे इसके आगे करोगे, उतना ही चाहिए मुझे. बोलो. x ला सर आपण ar cos थीटा घेणार आणि y ला br sin थीटा. इट मीन्स यहाँ पे भी आपको पोलर से करना है, और ये इस पे ही आपको क्वेश्चन से, सिंस दिस रीजन इज अ पार्ट ऑफ एलिप्स सो यू हैव टू सॉल्व यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट. सो कैन यू टेल मी डायरेक्टली लिमिट्स विद दैट होल रिप्रेजेंटेशन. यस थीटा वैरी फ्रॉम 0 to pi by 2. वेरी गुड. आर वैरी फ्रॉम 0 to 1. करेक्ट है ना, इसमें 1 होता है. हाँ एक्स की वैल्यू क्या है? ए आर बोलो cos थीटा. करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग. dx dy is replaced by a into b r dr d theta. Good, very good. Whole divided by same theta vary from 0 to pi by 2, r vary from 0 to 1, a b r dr d theta. ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज, जैसे मैंने दिया वैसे, ठीक है. एंड द सिमिलर वे यू कैन राइट डाउन फॉर्मूला फॉर दिस. लेट मी टेक, इसका फॉर्मूला आप इजीली लिख सकते हो. अभी मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, दैट सेव्स माय टाइम. और आप मुझे बोलो कि क्या लिखना है. टेल मी फॉर दिस नेक्स्ट स्टेप. सो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? बी आर ना, साइन थीटा. बाकी चीजें एज इट इज रहेगी, नीचे भी एज इट इज होगा. तो ये एक ही टाइम कैलकुलेट होगा ना, दोनों केसेस में एक ही बार कैलकुलेट होगा. ये नीचे का पार है ना, बस ये ऊपर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है. एक बार साइन है, एक बार कॉस है. कैन यू डू दिस? इसके आगे हो जाएगा ना, कैल्शियम में ही हो जाएगा सेपरेट करके. सो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मीडियम में और हार्ड में आ सकता है. सो डोंट ऐसे, मतलब यही जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही ले रहा हूँ. ते सेपरेट करायचं ना सर, इंटिग्रल लिमिट कॉन्स्टंट सेपरेट करून घ्या. आरचं वेगळं करा, थिटाचं करा, कॅल्सीवर सॉल्व करा, आन्सर येऊन जाईल याचं. इथं पण आणि याच्यात हे इथं डायरेक्ट कॅन्सल होऊन जातील. ए बी कॅन्सल होतील, फक्त इथे पण ए बी कॅन्सल होऊन जाईल. सो यू कैन डू दिस. एंड मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आप मुझे आंसर बोल दो व्हाट इज योर एक्स बार एंड व्हाट इज योर वाई बार. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट आई एम नॉट डूइंग दिस कैलकुलेशन, बट थ्योरी पार्ट में आपका ले रहा हूँ. Okay, I think this is enough as far as your 2D thing is concerned. Okay,
नाउ लेट मी फोकस ऑन एग्जाम्पल्स ऑन 3D थिंग, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन 1, या एज इट इज बुक का ही क्वेश्चन है। फाइंड द centroid of the region bounded by z is equal to 4 minus x square minus y square and xy plane, ठीक है। हाँ, अभी शायद आपको ये डायग्राम मैंने ये लिया है बेसिकली, बट आई नो कि आपको इतने जल्दी डायग्राम्स याद नहीं हो पाएंगे, ओके। बट आई विल जस्ट गिव यू द सिमेट्री। दिस रीजन इज सिमेट्रिक अबाउट z एक्सिस, है ना। ये आपको मैंने ये थोड़ा बहुत आपको याद होगा ना, जब हम ये प्लॉट करते ना, यू विल गेट अ पैराबोलॉइड अबाउट z एक्सिस, करेक्ट है। इफ आई ड्रॉ दिस, यस सर। हाँ, ये आपको मैंने शो किया था। सिमेट्री एटलीस्ट एक बार आप गो थ्रू करो, ओके। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको वो याद रखना होगा, या डायग्राम से तो आपको ओके। z इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, 4 माइनस, तो बस वो शिफ्ट हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो माइनस इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, हाँ ठीक है। फिर भी कुछ तो रॉन्ग ही शो कर रहा है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन क्विकली, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस शेप ऐसा ही रहेगा। क्या हो रहा है, ये शो क्यों नहीं कर रहा है, ओके। हाँ, ज़्यादा जूम हो गया था। हाँ, एंड नाउ इफ आई चेंज दिस टू 4 माइनस, करेक्ट है, इज इट विजिबल ना? यस सर। So you can see clearly this shape is symmetric about z axis। ये ऊपर का z axis ही है, ठीक है। तो that you can mention here first, okay। So this given region, so in solution, ठीक है। इसलिए आपको मोबाइल में GeoGebra भी रखना है। इफ यू डोंट नो एनी कर्व तो आपको इमीडिएटली उसकी सिमेट्री चेक करनी है। सो एंड मैं अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन में, दिस रीजन इज सिमेट्रिक अबाउट z एक्सिस, ओके। हाँ, बोलो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो या भी ये 2D का या 3D का एग्जांपल है, z आ रहा है, 3D का है, मतलब सॉलिड का है क्वेश्चन, ओके। सो एंड सिंस दिस गिवन रीजन, ओके, ये क्वेश्चन में गिवन ऐसे आप एज्यूम करो, सिंस गिवन रीजन is symmetric about what, z axis, so therefore your center of gravity point 0 0 0, very good, 0 0 z bar, it lie on z axis, ठीक है। and now let me write the formula for z bar। बोलो आगे, फिर मैं करके देता हूँ। टेल मी द फॉर्मूला फॉर z बार। ट्रिपल इंटीग्रेशन इंटीग्रल z, है ना, z यस। रूट लेना है, dx dy dz अपॉन ट्रिपल dx dy dz। dx dy dz। अभी आप बोलो कैसे सॉल्व करना है।
इसके लिए मैंने स्पेशली ये सेशन लिया है बिकॉज जेड से आगे और के 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डाले नहीं ये ट्रिपल हाउ यू आइडेंटिफाई द लिमिट्स ऑफ दिस ट्रिपल इंटीग्रल, दैट इज माय क्वेश्चन। हाउ यू सॉल्व दिस और दिस रीजन। मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किए बट मुझे ये ट्रिपल इस रीजन पे सॉल्व करना है, ये मेरा रीजन है बाउंडेड बाय दिस। आपको मैंने ट्रिक दी थी ना ये सब कुछ, ये ट्रिपल तो अभी हमने लर्न किया है रिसेंटली। हाउ वी जनरली सॉल्व दिस ट्रिपल इंटीग्रल, कैसे आप सॉल्व करते हो ट्रिपल, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो। Z चे given है। So first of all you have to identify the limits of z। xy plane का मतलब क्या होता है, z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0। Zero. What are the limits Zero. of z? तो आपको पहले ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करना है, करेक्ट है। यस तो पहले आपको ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए आपको चाहिए z के लिमिट्स। तो z के लिमिट्स क्या है, z वैरी फ्रॉम 0 टू दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बाकी चीजें एज इट इज dz एंड देन dx dy। नीचे भी क्या होगा, ओवर अ रीजन r, जो क्या है आपको मैं बोल देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय डबल ओवर अ रीजन r, सेम z वैरी फ्रॉम 0 टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, dz dx dy। सॉरी हाँ बोलो आगे बोलो अभी। अंडर 0 टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। So double integral over r and I think this become z square by 2। यस आएगा तो ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। So that become 4 minus x square minus y square whole square by 2, correct me if I am wrong, dx dy। एंड नीचे क्या आएगा, सेम होगा। तो ये 1/2 कैंसिल हो रहा है, वो मैं डायरेक्ट लिखने वाला था बट ठीक है। 4 नहीं कैंसिल हो रहा है, सॉरी ये z का ही है तो क्यों लिखना जरूरत नहीं है। सो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। हाँ अभी आई थिंक करेक्ट है ना, ये आप एक बार चेक करो अगर कहीं पे कैलकुलेशन Yes sir। क्या करोगे। तो ये याद रखो, ट्रिपल के सारे क्वेश्चन में पहले आपको ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करना है यूजिंग द लिमिट्स ऑफ z, बाद में वो रीजन आइडेंटिफाई करना है। नाउ टेल मी व्हाट इज द रीजन r। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, टेल मी रीजन r, टेल मी अ रीजन r। आई हैव गिवन 2 इक्वेशन, मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक था z इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है z इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई नीड माई रीजन r, मुझे रीजन r चाहिए। y is equal to under root x square plus y square equal to 4 सर। वेरी गुड, कैसे आइडेंटिफाई किया। सर वो z को 0 पोजीशन ले लिया ना हमने। तो Z ये का तो report result करें। है ना। नाउ दिस इज द लास्ट लेक्चर, ओके, आई विल एक्सटेंड फॉर 5 minutes more, okay, and don't leave this session because this is the important part। सी मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, आर के लिमिट्स, आर रीजन कैलकुलेट करने के लिए आपको डायग्राम मतलब ड्रॉ करने की जरूरत है ही नहीं। आर रीजन के लिए मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक दी है, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई। आप पहले ये देखो कि क्वेश्चन में एक्स एंड वाई का इक्वेशन गिवन है क्या, अगर वो गिवन, ओके, if in the question itself we have given the equation in terms of x and y only, that become a region r। अगर क्वेश्चन में ही आपको x एंड y का इक्वेशन गिवन है तो वही आपका रीजन r हो जाता है। इफ नॉट गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में ओनली x एंड y का इक्वेशन नहीं था तो उस केस में आपको क्या करना है, सेकंड केस में इन दैट केस यू हैव टू एलिमिनेट z। दो ही ऑप्शन है, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होता है x एंड y का इक्वेशन, इफ नॉट गिवन यू हैव टू एलिमिनेट z। रिमेंबर दिस टू रिजल्ट टू आइडेंटिफाई रीजन r, तभी वो आगे सॉल्व होगा। एंड नाउ हियर माई रीजन आर इज दिस, क्योंकि मैंने क्या किया है, इन दोनों से मैंने z एलिमिनेट किया है। कैसे, z इक्वल टू 0 सेकंड में पुट किया है, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, यू विल गेट x स्क्वायर माइनस y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। सो माय रीजन इज सर्कल, सो कैन यू टेल मी द लिमिट्स फॉर दिस लास्ट स्टेप, उसके आगे मैं आपको देने वाला हूँ। टेल मी थीटा वैरी फ्रॉम 0 to वेरी गुड, r वैरी फ्रॉम 0 to 4 माइनस क्या लिखना है, आर स्क्वायर ना, होल स्क्वायर यस सर अपॉन 2 dx डिवाइड रिप्लेस बाय r dr d थीटा। ये आपको सॉल्व, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में लिए थे सारे प्रॉपर सॉल्व करके रखो। एंड होल डिवाइडेड बाय
बोलो थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 2 0 to 2 pi, r vary from 0 to 2, 4 minus r square, r dr d थीटा ना, r dr d थीटा हो गया सर। ओके, इसके आगे आप कंप्लीट करो। आई थिंक इसके आगे ट्रिवियल है। क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है ना, सेपरेट होता सेपरेट हो रहा है तो कैल्सियम में सॉल्व हो जाएगा एंड देन यू विल गेट यूर z कोऑर्डिनेट। ओके, सो डू इट ऑन कैलकुलेटर। सो मैं आपको रेडीमेड आंसर दे रहा हूँ जो मेरे पास है, दैट वैल्यू इज 4/3। सो देयरफॉर योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 0, z कोऑर्डिनेट इज 4/3। ठीक है, नाउ आई विल टेक लास्ट एग्जांपल ऑन दिस एंड देन विल स्टॉप। ओके, yeah, the last question, question number 2, find center of gravity। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ही दे देता हूँ, वो जो मुझे लेना था, बट लेट मी जस्ट गिव यू दिस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रीजन, ऑफ द रीजन इन दी first octant, bounded by x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1, where both this all three numbers are positive। पहले मुझे ये बोलो, what is so specific about this region? Can anyone tell me that answer? What is so specific about this region? ट्रिपल में ऐसा रीजन आपने कहाँ पे देखा है? That is my question। ट्रिपल में ऐसा रीजन आपने कहाँ पे देखा है? It lies in first quadrant. वेरी गुड। ओके, बस उस एक डेफिनेशन के लिए क्वेश्चन मैंने लिया था। ओके, देख के ही आपको समझ में आना चाहिए ये रीजन आपने, दिस द टेट्राहेड्रॉन रीजन। याद रखो, डिरिक्लेट में टेट्राहेड्रॉन का रीजन होता है। रीजन वो भी आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। डिरिक्लेट कौन से केस में अप्लाई होता है? जहां पे इस फॉर्म में रीजन आता है, और ये भी आपको एक्सप्लेन किया था, इफ नॉट गिवन आप इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन लेके, है ना। सो ओके, तो पहले तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ दिस, सो आई थिंक हियर वी नीड टू कैलकुलेट ऑल थ्री वैल्यूज, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। सो सॉल्यूशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट इज इक्वल टू x बार कॉमा y बार कॉमा z बार। मैं कोई भी एक वेरिएबल कैलकुलेट करके देता हूँ आपको, रिमेनिंग वेरिएबल का कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट x बार। बोलो पहले फॉर्मूला बोलो, ट्रिपल x dx dy dz होल डिवाइडेड बाय, बोलो ट्रिपल dx dy dz। अभी मेरा पहला क्वेश्चन सुनो, कैन आई अप्लाई डिरिक्लेट डायरेक्टली फॉर दिस इंटीग्रल? अगर मुझे इस केस में डिरिक्लेट अप्लाई करना है तो मुझे क्या कंडीशन चाहिए? देयर आर टू कंडीशन फॉर डिरिक्लेट थ्योरम, पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन क्या है डिरिक्लेट की? फंक्शन x to the power x रेज टू सम पावर, y रेज टू सम पावर, z रेज टू सम पावर में चाहिए। है क्या वो फंक्शन उस फॉर्म में? है यहाँ पे, इट इज ऑलरेडी देयर। व्हाट इज योर सेकंड कंडीशन? If it is integral of x, y, z, what is the condition on x, y, z? x greater than 0, y greater than 0। हाँ ठीक है, वो that is in first octant, वो भी given है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? x plus y plus z less equal 1, करेक्ट है। तो ये याद रखो, पहले तो क्या फंक्शन x रेज टू सम पावर, y रेज टू सम पावर, z रेज टू सम पावर, एंड इन तीनों वेरिएबल में x plus y plus z लेस इक्वल 1 या इक्वल टू 1, कैसे भी लेस इक्वल में दोनों कंडीशन आती है, ये आपको चाहिए। सो वेदर वी हैव गिवन x plus y plus z इक्वल टू 1 या लेस इक्वल 1, ये गिवन है क्या आपके पास? वेदर दिस पार्ट इज गिवन, यस और नो, ये गिवन है या नहीं? अरे x plus y plus z यहाँ पे गिवन नहीं है ना, आपको x upon a plus y upon b plus z upon c इक्वल टू 1 गिवन है। वी डोंट हैव दिस x plus y plus z इक्वल टू 1, ठीक है। सो वी कैनॉट अप्लाई डिरिक्लेट डायरेक्टली फॉर दिस इंटीग्रल,
ये याद रखो, जिस भी इंटीग्रल के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना है ना, उन तीनों वेरिएबल के एडिशन लेस इक्वल 1 चाहिए या इक्वल टू 1 चाहिए, और वो फंक्शन उस फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे नहीं है, सो आई कैनॉट अप्लाई डायरेक्टली फॉर दिस। तो मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज सब्स्टिट्यूशन, पुट x by a इक्वल टू u, y by b इक्वल टू v, z by c इक्वल टू w। बोलो क्या चेंज होगा इसकी वजह से? हाँ, x की जगह पे क्या आएगा, au, dx की जगह पे क्या आएगा, dx, a du, dy, b dv, dz, c dw, होल डिवाइडेड बाय ट्रिपल a du, b dv, c dw। नाउ इफ आई टेक, ये कांस्टेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, हियर आई विल गेट ओनली, क्या मिलेगा बोलो, a बाहर आने वाला है ना, हाँ a नहीं, हाँ a, बोलो क्या मिलेगा, u du dv dw and whole divided by triple du dv dw। now tell me, can I apply dirichlet for this now? इसके लिए मैं dirichlet अप्लाई कर सकता हूँ क्या? इसके लिए नहीं कर सकता था। I cannot apply dirichlet for this because I don't have x plus y plus z equal to 1 or less equal 1। इस केस में नहीं था मेरे पास। so can I apply dirichlet for this? Yes, sir. हाँ, because what? Because U plus v w is more than equal to upon b equal to v, z upon c equal to w, then that implies u plus v plus w is equal to 1। तो इसके आगे बस आपको क्या करना था, यहाँ पे which is equal to a, अभी आपको पता है गैमा में कन्वर्ट होता है, u की पावर 1 है, 1 plus 1 2, ये भी गैमा में कन्वर्ट होगा, v है ही नहीं तो 0 plus 1, w भी है ही नहीं 0 plus 1, and upon gamma of their addition, so 1 plus 2 plus 1 plus 1 and whole divided by what, इसमें गैमा कुछ भी नहीं है तो 1 1 1 and whole divided by gamma of their addition, 1 plus 1 plus 1, that you can calculate। ऐसे ही आपको y बार कैलकुलेट करना है, ऐसे ही आपको z बार कैलकुलेट करना है। दैट इज ऑल अबाउट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है जो आई विल जस्ट गिव यू फॉर अ होमवर्क। तो यहाँ पे y बार कैलकुलेट करना है और z बार कैलकुलेट करना है। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर के केस में जस्ट 1 मिनट है, ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है। अगर स्फीयर का अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप उसकी सिमेट्री यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ठीक है, अभी वो क्वेश्चन में नहीं ऐड करवा, आई थिंक इतना ठीक है, आपको इतना नॉलेज ठीक है। ओके, आई थिंक अभी इमीडिएटली ओरल ही है, सो आफ्टर 5 मिनट्स विल स्टार्ट आवर ओरल। मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप पे। ओके, सो फॉर ओरल यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द फॉर्मूलेज फर्स्ट। मैं बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछने वाला हूँ, ओके, एंड जितने जल्दी आंसर मिलेगा, आई विल नॉट गिव यू सेकंड चॉइस की, वेट करने के लिए भी टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो जितने जल्दी आप क्विकली दे सकते हो उस अकॉर्डिंग आपको मैं मार्क्स देने वाला हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आप सबने फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर किए हैं।